آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ملک بھر میں 12 مساجد اور درگاہوں کے خلاف مقدمات دائر۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر بیرسٹر اسدالدین اویسی کا پارلیمنٹ میں بیان۔ نئے راشن کارڈز کے لیے سنکرانتی کے بعد درخواستیں کی جائیں گی قبول، حکومت کا ایوان میں بیان۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالجز میں ڈیٹینشن پالیسی پر نہیں ہوگا عمل، اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت کا اقدام۔ اپوزیشن کا احتجاج، اسمبلی کی کارروائی منگل تک ملتوی۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری، 5 مارچ سے ہوں گے امتحانات شروع۔ پاکستان کے تیز گیند باز محمد عرفان نے انٹرنیشنل کرکٹ کو کہا الوداع، ساتھیوں اور کوچز سے اظہار تشکر۔ اور حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں شدید سردی کی لہر، شہر اور مضافات میں بھی عوام پریشان۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ عرب ممالک نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں بستیوں کی توسیع کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے زور دے کر کہا ہے کہ تل ابیب حکومت کے گولان کی پہاڑیوں میں بستیوں کی توسیع کے فیصلے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بستیوں کی توسیع کا فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے پیر کے اوائل میں شام بھر میں سابق فوجی ہتھیاروں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد فضائی حملے کیے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے رپورٹ کیا ہے کہ تازہ ترین حملے زاما کے قریب بٹالین 107 میں میزائل اڈوں اور ترتوس کے دیہی علاقوں میں ہتھیاروں کے گوداموں پر کیے گئے۔ اس سے قبل اتوار کی شام ایک اسرائیلی جیٹ نے مبینہ طور پر مشرقی شام میں دیر الزوری ملٹری ایئرپورٹ پر راڈار کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی طیاروں نے دمشق کے دیہی علاقوں میں پہاڑوں میں کھودے گئے ہتھیاروں کے سابق ڈپو کو نشانہ بنایا، جس سے زوردار دھماکے ہوئے۔ سری لنکا کے صدر انوراگ کمار ڈیسا نائکے کو پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت سے قبل راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر دیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا ایکس پر کہا کہ ہم تہذیبی شراکت دار کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر کا ہندوستان کے پہلے سرکاری دورے پر رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹرپتی بھون کے صحن میں صدر کا خیر مقدم کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر بات کرتے ہوئے مودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی تنظیموں کی سیاسی حوصلہ افزائی نہ کرے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 12 مساجد اور درگاہوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian Constitution, which is one of the basic features of the Constitution. Non-retrogression is the foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is a core component. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. Historical wrongs cannot be remedied by people taking the law in their own hands. In preserving the character of the Places of Worship Act, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. Madam, this was said in the 7-judge constitutional bench in the judgment of Babri Masjid Ram Mandir. I demand from the government that to execute the laws made by Parliament, its non-enforcement is a violation of Parliament's sovereignty. Madams, 12 egregious cases have been filed against masjid and dargahs to convert or change their character, which includes Baba Budangi Dargah in Karnataka, Biju Mandil Masjid in Vidisha, Madhya Pradesh, Baduddin Shah Dargah in Bagpat,
the Modi government must give a clear answer as to its commitment to implement and defending laws made by Parliament. The Modi government must file a reply in Supreme Court defending the law in the राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ऐवान में कहा कि हुकूमत को बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब हैं। ऐवान में आइन को अपनाने के 75वें शानदार साल मुकम्मल होने पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बांग्लादेश आज के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को कायम किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने तकरीबन 1 लाख फ़ौजियों को जकड़ लिया था। उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताया था कि हमारे करीब आने के नतायज किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के जारी इजलास में मुतहरिक रंगों में लफ्ज़ फ़लस्तीन से मज़ीद एक बैग लेकर दाखिल हुई। बैग पर न सिर्फ लफ्ज़ फ़लस्तीन दिखाया गया था बल्कि इस पर सफ़ेद कबूतर की अलामत भी थी जो अमन की अलामत है। इसके साथ तरबूज भी शामिल है जो फ़लस्तीन की अलामती हिमायत के इजहार के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यकजहती का इशारा गजा और दीगर मकबूजा इलाकों में इसराइल की जानिब से अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई के दरमियान सामने आया है। रुकने पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसके इंसानी नताज पर तवज्जो देने की ज़रूरत को ज़ाहिर करने के लिए जानबूझकर इस बैग का इस्तेमाल किया। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. मध्य प्रदेश के इंदौर को भीख मांगने वालों से पाक बनाने की कोशिशों में ज़िला हुक्काम ने पीर को कहा कि इंतजामिया भीख देने वालों के खिलाफ 1 जनवरी 2025 से FIR दर्ज करना शुरू कर देगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह नामानिगारों को बताया कि इंतजामिया पहले ही इंदौर में भीख मांगने पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि भीख मांगने के खिलाफ हमारी शऊर बेदारी मुहिम इस माह के अवाखिर तक शहर में जारी रहेगी। अगर कोई शख्स 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया तो इसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। ओहदेदारों ने इंदौर के तमाम शहरियों से अपील की कि वे लोगों को भीख देकर गुनाह में शरीक न बने। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने हाल महीनों में मुख्तलिफ ग्रोहों को बेनकाब किया है जो लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और भीख मांगने में मुलविस बहुत से लोगों की बाज आबादकारी भी की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फुर्र लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे के बाद तेलंगाना कानून साज असम्बली में आज रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जारिया तालीमी साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तुलबा को डिटेंशन पॉलिसी पर इतलाक नहीं किया जाएगा।
कायदे मजलिस ने वक्फ सवालात में मसला उठाया और बताया कि उस्मान यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके तलबा को कामयाबी के लिए 50% नशानात दरकार हैं। जो तलबा नशानात हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्हें फेल करते हुए डिटेन किया जा रहा है, जबकि JNTU यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ के तलबा अगर 40% नशानात हासिल करते हैं और 25 क्रेडिट की तकमील करते हैं तो उन्हें कामयाब करार दिया जा रहा है। अलहदा यूनिवर्सिटीज़ के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए निसाब भी अलग अलग है, इसी तरह कामयाबी के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया कि उस्मान यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात भी मुनक्किद नहीं किए जा रहे हैं, जिससे इंजीनियरिंग के तलबा में तर्क तालीम का रुझान बढ़ सकता है और जिन तलबा को डिटेन किया जा रहा है वो फीस रियम्बर्समेंट स्कीम से भी महरूम रह रहे हैं। इंजीनियरिंग के तलबा से कहा जा रहा है कि वो 6 साल में तालीम मुकम्मिल करें, जबकि दूसरे पेशावाना कोर्सेज के लिए 8 साल का वक्त दिया जा रहा है। इन तमाम नकायस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि तलबा भी उलझन का शिकार न हो। So at least I request sir कि detention policy suddenly it has been introduced sir. Sir, it was not there earlier for 2-3 years and this year they have suddenly introduced this and many students were unaware of this detention policy sir. उनको मालूम भी नहीं था कि अगर आप इतने क्रेडिट्स नहीं लाएंगे तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर एटलीस्ट ये साल के लिए ये डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करके पूरी एक सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करिए, चाहे JNT हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, काकतिया हो, जो भी हो, हर जगह पे एक पॉलिसी बनाइए, एक रूल बनाइए और क्रेडिट्स भी एक करिए, सिलेबस को भी एक करिए। और सर इसमें बहुत सारे करेक्शंस हैं जो मैं अभी आपके जरिए बोला हूं, तो मीटिंग अगर बुला ली जाती है तो इससे करेक्शंस कर सकते हैं। लिहाजा इस साल के लिए डिटेंशन पॉलिसी को अगर सस्पेंड करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों का फ्यूचर भी इससे बचेगा। सर అధ్యక్ష, ప్రధానమైన అంశము ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి ద మెయిన్ ఇష్యూ విత్ రిలేటెడ్ టు టుడేస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద పాలసీ, ద క్రెడిట్స్, ద సిలబస్, the detention, readmission. So with regard to the policy of detention అనేది కొత్త కాదు, it is policy which is there in last 40 years, 50 years. But in between the universities are given relaxation. The request of the honorable member is that at least for this year the relaxation may be given. The government has in principle have taken a decision to relax for this year. तेलंगाना कानून साज असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास से असल अपोजिशन BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वॉकआउट किया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार की सदरत में मुनक्किदा BSE के इजलास में चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू, BRS के अरकान हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, BJP और CPI के अरकान ने शिरकत की। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि असम्बली का जारी इजलास कितने दिन चलाया जाएगा और कौन से मौज़ूआत पर ऐवान में मुबाहिस होंगे, इसकी तफसीलात पेश की जाएं। हुकूमत की जानिब से तफसीलात फराहम नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि अक़लियती बहबूद के अलावा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट, रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, नक्सलाइट्स के इनकाउंटर, स्कॉलरशिप के बकायाजात और गुत्तेदारों को जो हुकूमत बिल्स बाकी है, इसके साथ साथ दीगर अहम मसाइल पर मुबाहिस करवाए जाएं। इजलास में हुकूमत की जानिब से मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं कहा गया, जिसको देखते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने इजलास से वॉकआउट किया। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नए राशन कार्ड्स के लिए संक्रांति से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वक्फ सवालात के दौरान मजलिस के रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी और दीगर अरकान काउंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का वजीर ने तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है और 10 लाख अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मजीद ये कि तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी का अमल जारी है और संक्रांति के बाद नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें कबूल की जाएंगी। ఈసీ క్యాష్ సర్వే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒక డేటా బేస్ ఉంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి మేము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఈ డేటా బేస్తోని కంపేర్ చేసుకొని ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్స్పెడైట్ చేసి చేయబోతున్నాం.
అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కలెక్టర్లకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే ఏ రేషన్ డీలర్షిప్ వేకెంట్ అయితే వెంటనే నింపమని, ఎక్కడన్నా ఆ విధంగా జరగకుండా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురండి. తప్పనిసరిగా అన్ని ఏదైతే రేషన్ డీలర్షిప్స్ వేకెంట్ అయినాయో తప్పనిసరిగా భర్తీ చేస్తాం. మరి ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం మీరు చెప్పిన దాని మీద. మొత్తం ఖాళీ ఉన్న రేషన్ డీలర్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఫిల్అప్ చేయాలి. बीआरएस ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रकूमात की अदायगी के मसले पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असम्बली से वॉकआउट किया। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने असम्बली में सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिल्स पर सवाल उठाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को एक ही महीने में 12,000 करोड़ रुपए अदा किए गए और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्सों और सरपंचों को रकम नहीं दी गई। उन्होंने गवर्नर और वुज़रा से शिकायत की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो असेंबली एहतजाज पर उनको गिरफ्तार किया गया। పల్లె ప్రగతి కింద ప్రతి నెల 275 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పల్లె ప్రగతి ప్రారంభమైన తర్వాత 3,300 కోట్ల రూపాయలు 3,300 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. ఒకవేళ మీరు ఆ పద్ధతిని కొనసాగించుంటే నెల 275 కోట్లు ఇచ్చుంటే ఇవాళ ఈ బకాయిలు ఉండేటియే కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సర్పంచుల పాలిట పేద కాంట్రాక్టర్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీల పాలిట ఈ హస్తం గుర్తు భస్మాసుర హస్తమై కూర్చున్నది. ఇవాళ వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మంత్రి గారిని నేను స్పష్టంగా అడిగా, సంవత్సర కాలంలో మీరు క్లియర్ చేయలేదు. तेलंगाना के रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासत में तश्कील पाने वाले नए अजला में किसी एक ज़िले को मनसूख करने का कोई मंसूबा नहीं है। इसके अलावा पुराने अजला को रद्द करने का भी कोई फैसला नहीं किया गया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वक्फे सवालात के दौरान एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर अमाल ने कहा कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने वाली बीआरएस हुकूमत ने रियासत के फाजिल बजट को मखरूज बना दिया है। बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि असम्बली का बीएसी इजलास के माने बिस्किट और चाय का इजलास नहीं है। कम से कम 15 दिन तक असम्बली का इजलास मुनक्किद करने का बीआरएस ने हुकूमत से मुतालबा किया। ताहम हुकूमत ने बीएसी के इजलास में ये वाज़ेह नहीं किया कि कितने दिन तक असम्बली का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिस पर बीआरएस ने बीएसी का वॉकआउट किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास अपोजिशन बीआरएस की हंगामा आराई की वजह से मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। वक्फे सवालात के अख्तिताम के बाद स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बादशाह जब ऐवान की कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो स्पीकर ने वज़ीर सयाहत जे कृष्णा राव को सयाहती पॉलिसी पर मुख्तसर मुबाहिस की इजाज़त दी, जिस पर वज़ीर सयाहत ने अपनी तकरीर शुरू की। इस दौरान अहम अपोजिशन बीआरएस के अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और लगचरला में किसानों को हथकड़ियाँ पहनाकर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के वाक़े पर मुबाहिस की इजाज़त देने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतादिद मरतबा बीआरएस के अरकान को कामिश हो जाने और ऐवान की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने में ताउन की अपील की। ताहम बीआरएस के अरकान ऐवान में नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पीकर ने बीआरएस अरकान को मशवरा दिया कि वो अपने हाथों में मौजूद प्ले कार्ड्स को ऐवान में मौजूद मार्शल्स के हवाले कर दिए। स्पीकर ने बीआरएस अरकान को मशवरा दिया कि वो अपने हाथों में मौजूद प्ले कार्ड्स को ऐवान में मौजूद मार्शल्स के हवाले कर दें, जिस पर ही उन्हें बात करने का मौका फराहम किया जाएगा। इसके बावजूद बीआरएस के एहतजाजी अरकान स्पीकर की अपील को नज़रअंदाज कर रहे थे और ऐवान में हंगामा आराई जारी रखी, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को मंगल की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड डॉक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी तैयार है, जिसे अनकरीब जारी किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से वजारत माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस हुकूमत हिंद के इश्तराक से ग्रीन एनर्जी पर मुनक़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मुखातिब करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के मामले में तेलंगाना रियासत को इंतहाई अहमियत हासिल है और तेलंगाना मुल्क भर में ऐसी वाहिद रियासत है जहां ज़री शोबे के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है।
तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक होंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 2 फरवरी तक मुनक्किद किए जाएंगे। इंटर एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 29 जनवरी को होगा। इस सिलसिले में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने पीर को सरकारी आलामिया जारी किया। बोर्ड ने पहले ही निसाब मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है और इम्तिहानात के शेड्यूल के बाद तुलबा को नजरसानी का वक्त फराहम किया जाएगा। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गजवेल के करीब रामन्नागुडम की राजीव राहदारी के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। महलूक खातून की शिनाख्त श्रावंती के तौर पर की गई है। इसके दीगर अरकान खानदान सुधाकर, ऋतिक और साई के अलावा गणेश शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए गजवेल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఉంది కదా భయ్. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. ఒకటి 86392484. दफ्तर तेलंगाना हज कमेटी में मंगल 17 दिसंबर को 11 बजे तक 1 बजे दिन जिला हज सोसाइटीज़ का इजलास मुनक़िद होगा। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल खुसरो बयाबानी सदारत करेंगे। इस इजलास में हज कमेटी के अरकान और दूसरी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। तेलंगाना की रच्चाकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर बैन रियासती मंशियात के रैकेट को बेनकाब किया और मीरपेट में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से तकरीबन 53.5 किलो अफीम के कैप्सूल्स को जब्त किया, जिसकी मालियत 1.2 करोड़ रुपए बताई गई है। ये टोली मध्य प्रदेश से मंशियात हैदराबाद स्मगल करके इसे नशा करने वालों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के मंसूबे में थी। డ్రగ్ పెడ్లింగ్ ర్యాకెట్ ఒకటి బస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వీళ్ళు మహారాష్ట్ర, ఇన్ ద సెన్స్ మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తెలంగాణ ఈ 3 స్టేట్స్ నుంచి ఉన్న యాక్టివిటీని మనము ఈ గ్యాంగ్ అరెస్ట్ చేయడం మూలంగా కంట్రోల్ చేయగలిగాం. దీంట్లో 53.5 kg ఆఫ్ పాపీ స్ట్రా మనం సీజ్ చేసాం. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన కన్జంప్షన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే 1.25 crore ఇన్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న నేరస్తులు ఇంతకుముందు కూడా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. వీళ్ళు బేసికలీ ఇందులో ఉన్నటువంటి నేరస్తులు మంగీలాల్ బిష్నాయ్, మంగీలాల్ ధాకా, బీరా రామ్, 3 అక్యూజ్డ్, మెయిన్ అక్యూజ్డ్. అయితే దీనికి సప్లై చేసినటువంటి పింటూ మోహన్ సింగ్, ఇతను మధ్యప్రదేశ్లోని మిన్ను నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు. ఇతని పైన మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ద లాట్ ఆఫ్ గ్యాంగ్స్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. అందులో వన్ ఆఫ్ దీస్ అక్యూజ్ దిస్ పింటూ ఇస్ దేర్. వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ సర్టన్లీ విల్ గెట్ దెమ్. అంతేకాకుండా ఈ ఇంకా 3 అక్యూజ్లు వాళ్ళు పెడ్లర్స్ తో కాంటాక్ట్లో ఉండి రిసీవర్స్గా ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా మనం లోకల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు. విల్ పిక్ దెమ్ అప్ ఆఫ్టర్ దిస్ కన్ఫెషన్. విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్. सिकंदराबाद के मिट्टूगुड़ा में पीर की सुबह डीजल से भरा एक टैंकर उलट गया। महकमे फायर ब्रिगेड के अमले ने मौकामे वाक़े पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। ये टैंकर घटकेटर से शहर की तरफ जा रहा था कि मिट्टूगुड़ा इलाके में उलट गया, जिसके साथ ही राहगीरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई और इलाके पर नाकाबंदी कर दी गई ताकि गाड़ी सवार हादसे का शिकार न हो। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
फायर इंजन के अमले को इत्तला दी और उसने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। చాలా డేంజర్ జోన్ ఉన్నాం. पेट्रोल टैंकर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आदिलाबाद के बेला में पीर की सुबह मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस श्रीलिंगमपल्ली मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौला अली में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला बशमूल संगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला में शदीद सर्दी की लहर के जेर असर हैं और कई इलाकों में इतवार की निफशब और पीर के अवाइल में दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज किया गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए इरफान ने कहा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्रिकेट करियर के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, जोश और नाकाबिले फरामोश यादों के लिए अपने साथियों और कोचेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुल्क भर में 12 मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ मुकदमा दायर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में बयान। नए राशन कार्ड्स के लिए संक्रांति के बाद दरखास्तें की जाएंगी कबूल, हुकूमत का ऐवान में बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिटेंशन पॉलिसी पर नहीं होगा अमल, अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत का इक़दाम। अपोजिशन का एहतजाज, असेंबली की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी। तेलंगाना इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 5 मार्च से होंगे इम्तिहानात शुरू। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, साथियों और कोचेस से इजहार तशक्कुर। और हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर, हैदराबाद और मज़ाफ़ात में भी अवाम परेशान। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।